What are you eating? Plastic. I am eating plastic. Also eating plastic. But why are you eating plastic? What are you eating? It's a done thing in Bhutan. What is it about? Nothing. You just Mr. Vinay. keep your face from freezing. Otherwise, you walk stuck. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है डे 6। इस वक्त हम हैं पुनाखा में। पुनाखा से निकल रहे हैं पोपजिका की तरफ, जो अराउंड 80 किलोमीटर्स है। और कल का दिन भी बहुत सही रहा। फोर्ट देखा और फोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देखिए और बताइए कैसा लगा। और बस सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मेरा आधा लगेज जा चुका है। बाइक का सामान सारा इधर है, टैंक बैग एंड वेस्ट पाउच एंड हेलमेट एंड कैमरास। सो लेट्स गो, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं एंड डे 6 को और अमेजिंग बनाते हैं। सी या। सो वी आर ऑल सेट। डे 6, हाँ लवली, मज़ा आ गया। Okay, day 6 of the ride, and we are here in Punakha. Okay, we have about 100 kilometers to do, and we get into Wangdi, which is the largest Dzongkhar district in Bhutan. It's also one of the busiest, okay, along with Thimphu and Paro. यार एक एक दिन कैसे निकल रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लगा था बस कल ही जर्नी शुरू की थी और 5 दिन हो भी गए, 6वां दिन शुरू हो गया। इट्स ऑल अबाउट, जैसे ही आप स्टार्ट करने के पहले लगता है कि अरे राइड को भी 15 दिन है, 20 दिन है ना। नॉट इवन 15-20 दिन, बिकॉज आपको 2 महीने से पहले से ही पता होता है कि ये राइड आने वाली 2 महीने के बाद है। प्रिपरेशन तब से चालू हो जाती है, बुकिंग्स, वीज़ा एंड राइडिंग गियर्स, एवरीथिंग। लगता है बहुत टाइम है, लेकिन जैसे ही राइड चालू होती है, जैसे ही आप पहुंच जाते हैं ग्रुप में एंड व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग, दिन कहाँ जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। We have 100 kilometers, and we come down, and then at so Wangdi, Phodrang were 2 small towns, and then we're going to be climbing from Punakha, which is about, I think this is about 1200 meters, to Phobjika, to Pelela, which is around here, which is about 3,400 meters. 3,000 feet क्लाइंब कर रहे हैं। 3,000 feet और meters बोला था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Okay, then we descend, and you see that Phobjika is here. Okay, Pelela is here, and Phobjika is inside. So this is the Phobjika Valley. Okay, it is a very remote part of Bhutan. Okay, where nothing much happened, and basically it was known. It's like a biodiversity, and it's known for its black neck crane. सो अब तक हमने सबसे पास से एक ब्लैक नेक क्रेन देखा है, और वो ये मिस्टर केबी। Like I've said before, the village has kind of resisted any big development because they want to disturb the natural habitat of for the blackneck crane. So they try to keep the electricity invasion to the minimum. And for a long time, I think electricity just came about 10 years ago. Yeah. 10-15 years ago. And also they have especially they started with the underground wiring. Yeah. There are no wires on top. So we have to, we don't need to cross Pelela to get to... I know, it's a deviation. It's a deviation. So if Go up to no Pelela. next time maybe we should avoid. Yeah, we'll take a call. We'll see. There's bound to be ice. और ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ, और ये कॉर्नर्स, ब्यूटीफुल कॉर्नर्स, ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रैक का फील दे रहा है। बट द ओनली थिंग इज, जॉन ने कहा है कि मेक श्योर कुछ पैचेस जो हैं वो वेट हैं और आइस भी मिल सकती है, तो कॉर्नर पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज सडनली ड्राई एरिया मिलेगा एंड सडनली आइस और वेट सरफेस हो सकता है। बट एंजॉय करते चलना है, मजे लेते चलना है। और इसी के साथ एक और खूबसूरत टर्न दिखाई देता हुआ दूर से, और ये निकल गए मजाड़ी लाइफ। We'll keep going up and down. We'll stop at a place about an hour and a half from now called Nobding. It's a restaurant. We'll stop there for coffee, bio break and all that. Take a half an hour break. हाँ, lovely, beautiful. It was
चुम्मा रोड. It feels like Lord of the Rings. So you have waterfalls coming down the mountain. You have people swimming. It feels like Jurassic Park is set. Look at that. Wonderful. Where is the restaurant? This is the Captain John. हमारे Captain John, who's leading the tour. Thank you so much, John, Absolute pleasure, my friend. Absolute pleasure. for bringing us to Thank you. amazing places. जितनी भी जगह पे गए हैं, मैंने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया है. सो उस समय अनिल जी थे, यहाँ पर जॉन हैं जो टीम को पूरा लीड कर रहे हैं. जितनी भी जगह पर रुके हैं, जहाँ भी खाना खाया है, जो भी आइटिनरी रही है, जो भी रूट पे लेके गए, simply amazing. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you for joining. Thank you for riding. Thank you for being such a good rider. It's a pleasure to ride with you. सेम है. मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, खुशी हो रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये भी है कि यार 4-5 दिन के बाद वापस जाना है. बट उस चीज़ को हम दिमाग में बिल्कुल नहीं लाएंगे. एंड प्रेजेंट मोमेंट में इस व्यू को और पूरी कंप्लीट राइड को एंजॉय करेंगे. क्या बोलूँ यार, ये जो नज़ारा है, मतलब मन नहीं भरता. आई नेवर फेल्ट दिस बिफोर अबाउट मोटरसाइकिलिंग. और टूरिंग का तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा सोचा था कि कभी टूरिंग करूँगा, लेकिन ये धीरे धीरे डिस्कवर करते करते हुआ. आई डोंट रिग्रेट एट ऑल. जब भी बाइक पे निकलता हूँ, जिस टेरेन पे भी जाऊँ, जिस कंट्री में भी जाऊँ या अपनी कंट्री में, फीलिंग सेम है. Then Pelila from there is about 45 minutes, Yeah, right? about 40 minutes. Yeah, 40, 45 minutes. Being So we uphill. go up there. It could get pretty chilly. There's no sun. We take a call and then we come back. ये इसकी आवाज मेरी आवाज़ नहीं सुनता. ये गोप्रो अनिल की आवाज नहीं सुनता है. मैं जब कमांड देता हूँ, वॉइस कमांड फट से रेडी हो जाता है. नहीं, मैं जाके वापस सेटिंग इसकी चेंज करूँगा. गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग. गोप्रो के वॉइस कमांड पे अभी सब मज़े ले रहे थे कि किसकी आवाज़ सुनता है. तो अनुजीत की आवाज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है. आई थिंक अनुजीत ने सेट किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है. हम लोग एक्चुअली लकी रहे कि आज सनी डे, अदरवाइज बहुत विंड होती है और ज़्यादा ठंड होती है. ज़्यादा ठंड तो अभी भी है. आई थिंक हमको 5-6 दिन से आदत हो गई. चिन माउंट का जो गोप्रो है वो डेड हो चुका है कम्प्लीटली. आई थिंक यार बैटरी तो फुल थी, बट आई थिंक ठंड के कारण शायद बैटरी इसकी डाउन हो गई. Then we enter Fort Jika and we ride down. The deal here is there would be ice also on the roads, maybe surrounding as we are going down into Fort Jika. So on the highway, we branch in and we get in to Fort Jika. So then we start descending into the valley. Just watch out, probably on your right. You will see at one point the road will turn and the valley will open up.
right? So that's the beauty of Phobjikar. हेलमेट पे गोप्रो था, उसकी बैटरी चली गई। तो जब एक्चुअली व्यू अच्छा है, मे बी गॉड वांटेड मी टू शट माय माउथ। तो भगवान चाहता था कि मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है और व्यू को एंजॉय करूं। तो अभी इंस्ट्रक्शन ये मिले हैं कि पहले लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव रूम्स में। तब तक रूम सारे रेडी हो जाएंगे बिकॉज किसी का लेट चेकआउट हुआ है और हमें भी ऐसी कोई जल्दी तो है नहीं, तो राइडिंग गेयर्स में ही हम बैठ के खा सकते हैं आराम से। उसके बाद जाएंगे अपने रूम एंड चेक इन करेंगे। सो गाइस हम लोग आए यहाँ पे क्रेन सेंटर पे। Two injured, which was attacked by a wild animal or a dog, and then they could not fly back to Tibet. So that's why they have kept rescue and kept here. क्रेन कर्मा एंड क्रेन पेमा। Then we'll come back on the school level. Started the documentary. You can go inside to see the documentary. Block of them. Do they simply use the thermal conditions as the biologists claim? Or do they pay their respects to the monastery of Gangti Gemba as the monks say? Who can tell? और यहाँ पर हमारे एक राइडर डॉक्यूमेंट्री देखते देखते सो गए हैं। मेरी आवाज गोप्रो की आवाज से उठा है, गोप्रो की आवाज से उठे। ब्लैक नेक क्रेन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, पूरी बताऊंगा। documentary देखी, हाँ, बताओ। ब्लैक नेक क्रेन्स आते हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये तो पहले उसको से पता है। सेफगार्ड करने के लिए क्या गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में पैक्ट किया गया है क्या बताया? और बताया कि ब्लैक नेक क्रेन्स नहीं आएंगे तो इस रीजन में टूरिज्म खत्म हो जाएगा, Correct. इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ओके एंड उनके लिए सूटेबल हैबिटेट्स बनाने के लिए एफर्ट लगाया जा रहा था। और क्या, मतलब मेन पॉइंट से पहले बता देते, बाद में सो गए थे। सो यहाँ पर
ब्लैक नेक क्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना अलाउड ही नहीं। अगर आप यहाँ बीच में देखेंगे, इस ओपन लैंड इज़ वेयर ब्लैक नेक क्रेन कम्स। और यहाँ पर जितना भी खाने का सामान, जो भी सामान आता है वो बाहर से आता है, तो कुछ भी यहाँ पर उगाया नहीं जाता। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पोब्जिका, और बहुत ही पीसफुल, काम, और वेदर बहुत अच्छा है। अमेजिंग प्लेस, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर आप देखोगे तो माउंटेन्स में भी बहुत दूर दूर पर एक एक दो बिल्डिंग्स हैं एंड हार्डली होटल्स हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट इसलिए भी किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि ब्लैक नेक क्रेन्स अगर यहाँ से चले जाएंगे तो टूरिज़्म परफेक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ के रहने वाले लोगों पे, क्योंकि टूरिज़्म ही इस सिटी को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर कैमरे के थ्रू तो मैं दिखा नहीं सकता, एंड करंटली वी आर सीइंग थ्रू दिस। One looks like juvenile. Yeah, one is juvenile. The backside one is juvenile. चेक The color are तो पैंट एडिट करना अपने हिसाब से। देखा, अरे बहुत पास में। हाँ तभी तो Very close. There are two different colors, yeah, the white and black, and then brown and white. See. brown. Brown. The mature one, two are. That little bit brownish is the juvenile. This bird, the black neck crane, is the rare birds, which is also a migratory birds, which fly all the way from Tibet to Bhutan in winter as a winter resident, and summer they fly back all the way from here to Tibet. So how many kilometers they travel Thousands, more than in thousands. one go? Yeah, In one go. on go. They don't stay. Otherwise, if they stay in between, then they lose the route. They lost the routes which they're taking. So take in a one. Wow. So thousands of kilometers in one go. अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसी प्रिपरेशन करते हैं, हेलमेट और खाने का सामान एंड राइडिंग गियर्स। आई डोंट नो हाउ डू दे प्रिपेयर, बट 1000 kilometers without anything. Crazy. Yeah. नहीं, but migration में you can carry stuff, no? But that's the difference, na, between human migration and birds and animals. We need stuff. We need a lot of stuff. They don't need. Wherever they go, they know they can create. They can find through nature. And see the wing, how strong wing they have, Yeah. which they have to fly one go. Wait, मुझे देखना पड़ेगा। spotted one. सो अब तक हमने सबसे पास से एक ब्लैक नेक क्रेन देखा है, और वो ये है मिस्टर केबी।